we have to start with the what we have to say that there is a one program that is called write a program to enter three subjects marks and calculate the total of entered marks and grades. If total marks are more than 250, then the grade is A, otherwise B. Question is clear? Question is clear or not? Question is clear? Or I will repeat again. Students, Sudeep Kumar. Uh, Write a program to enter three subjects marks. Right? Wait a minute. I am just sharing and writing on the. Wait. Now my screen is visible. Yes, sir. Okay. So Yes. so I am writing. Write a program. Enter three subject marks. Calculate entered. Voice is audible. Voice is audible or not? Yes, sir. Entered marks Yes, sir. and grades. And grades. If the total marks are more than 250, then the grade is A, otherwise clear. Question is clear or not? Student, question is clear or not? Yes, sir.
So what we have to do first? हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले? बोलो भाई, किसका? वेरी गुड. फर्स्ट इज मार्क्स 1 इज इक्वल टू, चूंकि मार्क्स फ्लोट में हो सकते हैं, फ्लोट enter the marks, enter the first subject, enter the first subject marks, right? Second, marks 2 is equals to, we have to copy it. So we it is marks 3, right? Clear? ये क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. हमने पहले क्या किया? First we have to take the input from the user, that please enter the marks, all 3 subjects marks. So we have to give the code for, we have to give the input. We have to use that input statement to enter the marks in marks 1, marks 2 and marks 3. So when the user will input the all 3 subjects mark, it will stored in marks 1, marks 2 and marks 3. ये तीनों में वेरिएबल में ये तीनों इनपुट हो जाएंगे. ठीक है, ये तीनों वेरिएबल्स में जो मार्क्स इनपुट करेगा वो तीनों स्टोर हो जाएंगे. नाउ क्या करे क्वेश्चन? अब क्या कह रहा है? राइट द प्रोग्राम टू एंटर 3 सब्जेक्ट्स मार्क्स एंड कैलकुलेट द टोटल. तो अब टोटल कैलकुलेट करना है. तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमको एक वेरिएबल मैंने ले लिया, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स. ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम? मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 टोटल कर दिया. ठीक, अब वो कह रहा है कि इफ टोटल मार्क्स आर मोर देन 250. अब क्या कंडीशन लगानी है हमको? मार्क्स इज मोर देन 250. सो इफ कंडीशन लगानी है तो इफ लगाना पड़ेगा. तो क्या ग्रेड क्या कर दे? ग्रेड
right? ठीक है, यहां तक क्लियर है? Now what we have to do, we have to print total marks. Total marks is equals to comma total underscore marks, right? और इसके बाद प्रिंट ग्रेड कर दे। ग्रेड भी इसकी प्रिंट कराना है हमको, तो ग्रेड इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कॉमा व्हाट, ग्रेड हमारी स्मॉल में है, जो वेरिएबल लिया हुआ है वो हमने स्मॉल में लिया हुआ है। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं आया? Question is clear or not? Yes, sir. Only one student says. Yes, sir. Umangi in the meeting? Umangi Nigam Yes. Yes, sir. और अनामिका? So we have to run this program. Save. Enter the first subject marks 34, second 45, 20. अच्छा, there is a mistake. Mark 3 is having like that. ठीक है, यहाँ मार्क्स 3 मैंने सेव नहीं किया था, तो इसको सेव कर देते हैं, अगेन रन करते हैं। 20, 30 और 50. Total marks is 100. Grade is B. Clear? Total marks किया इसने 20, 30, 50, total 100. 100 क्या हुआ? चेक हुआ, it is less than 250, so else part will execute, so grade is B. So after running this program we will get grade B.
Clear? Yes, sir. Point is clear to everyone or not? Yes, sir. Yes, sir. Now next is write a program to calculate the factorial of a number. You know factorial? What is the factorial of 5? What is the factorial of 5? Sir, 120. How will you calculate? तो फैक्टोरियल मतलब 120 उसके पीछे वाले नंबर पर माइनस कर देते हैं। देखिए, वेट, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1. So it calculates 120. So it calculates 120. If it is 6, then 6 into 5 into 4 into 3 into 1. Clear? So this is the factorial. So let us find out the logic. अगर मैंने 5 दिया तो 5 क्या करेगा? 5 उसके बाद हम लूप चलाएंगे, एक वैल्यू कम करेंगे, वो उससे मल्टीप्लाई होगी, फिर एक वैल्यू कम होगी, उससे मल्टीप्लाई होगी, फिर एक वैल्यू कम होगी, और कहां तक जाएगी? 1 तक, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। और 1 से लेस हो जाए तो फैक्टोरियल फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा उसका? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? जीरो का फैक्टोरियल होता नहीं है, 0 होता है। जीरो का फैक्टोरियल सर 1 होता है। अच्छा, वेट अ मिनट। अगर ये फैक्टोरियल 0, क्योंकि 0 का तो हाँ, तो एक काम करते हैं, कंडीशन जो है यहाँ पर ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही ये 0 करेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लास्ट में जब अगर हमारा 0 होता भी है यहाँ पर, वेट अ मिनट, अगर यहाँ फैक्टोरियल 0 होता भी है तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1। तो इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। फैक्टोरियल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई?
अगर 0 है, क्योंकि हमें 0 तक जाना ही नहीं है, हमें वैल्यू को एक एक कम करते जाना है। हमें ये पता है कि फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल ये होते हैं इतना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी फैक्टोरियल हो, सबसे छोटा फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। सबसे जो छोटा फैक्टोरियल है वो 1 होता है। तो हम हमेशा लूप को कहां तक ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 है। क्लियर? तो इसी प्रोग्राम को, इसी लॉजिक को हम यहां अपने प्रोग्राम लाएंगे। पहले हम फैक्ट की वैल्यू 1 रख लेंगे, क्योंकि हमें जो मिनिमम वैल्यू है फैक्ट की वो रहेगी 1, ठीक है। इसके बाद हम नम की वैल्यू, नम इज इक्वल टू इंट, इनपुट लेंगे, किस नंबर का फैक्टोरियल करना है, इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, राइट। इसके बाद अब हम कंडीशन देंगे, इफ नम इज लेस देन इक्वल टू 1। अब यही कंडीशन जो 1 वाली कंडीशन है उसको हम यहां सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? इफ नम इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी नम जो है वो, अगर कोई भी नंबर हम इनपुट कराएंगे और उसकी वैल्यू 1 या उससे कम है, तो क्या कर दे, ये प्रिंट कर दे मैसेज, क्या फैक्टोरियल इज 1। तो आप कह रहे थे फैक्टोरियल इज 1। अब बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? बोलिए। यस सर। नाउ Yes, sir. नेक्स्ट इज एल्स। अब एल्स पार्ट पे चला जाए, अगर 1 नहीं हो, अगर हमने 1 ही दे दिया तो अब क्या करें, 1 नहीं दिया तो क्या करें, हमने वाइल लूप से इसको, लूप को चलाया, वाइल चले कहां तक, नम इज, जब तक ये वैल्यू नम से 1 से बड़ी रहेगी तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। हमेशा इसकी कंडीशन क्या होगी, वाइल जब लगा दिया मैंने, वाइल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से हमेशा नम की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, तब तक ये लूप कंटिन्यू रहेगा। और क्या करेगा, फैक्ट जो है फैक्टोरियल क्या करेगा, ये फैक्टोरियल 1 करेगा, नम करेगा, सॉरी नम, ठीक है। नम की वैल्यू एक एक इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी, और यहां से फैक्टोरियल क्या करेगा, नम में मल्टीप्लाई करेगा, और नम इज इक्वल टू क्या करने हैं, इन डिक्रीज करनी है वैल्यू, तो नम -1 करना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, हमने अगर रन में, अगर प्रोग्राम हमने रन कराया और हमने दे दी वैल्यू 1, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फैक्टोरियल हो जाएगा 1। अगर हमने 0 दिया, लेस देन 1 से लेस दिया, तो भी क्या देगा हमको, ये फैक्टोरियल इज 1 देगा, यानी हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। जैसा आपने बोला था कि फैक्टोरियल 0 का जो है वो 1 होता है, तो हमने 1 से कम भी दिया तो भी फैक्टोरियल 1 आएगा, और अगर 1 दिया तो भी फैक्टोरियल प्रिंट करेगा। अब अगर हमने दे दिया 2, तो कहां पर आ जाएगा, पहली कंडीशन फॉल्स, तो ये कहां पर आ जाएगा, एल्स पार्ट पर आ जाएगा, ठीक है। और एल्स पार्ट पर आकर वाइल कंडीशन में जाके नम की वैल्यू चेक करेगा, नम 2 इज ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम,
अब फैक्टोरियल की वैल्यू ऊपर कितनी है, ऊपर सबसे पहले कितनी इनिशियलाइज की 1, तो 1 जो है फैक्टोरियल में वैल्यू हो गई 1, 1 इंटू पहला क्या होगा 2, और 1 इंटू 2 होगा 2, और नम की वैल्यू नम माइनस 1 हो जाएगी, यानी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, तो फैक्टोरियल इसका फिर से ये चेक करेगा, तो फैक्ट की वैल्यू नम माइनस 1 होगी, 2 होगी, 2 माइनस 1 होगी, 1 इज लेस देन 1 हो जाएगा वाइल में, और ये लूप कंडीशन से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या प्रिंट करेगा 2 और 1, और उसका दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट माइनस फैक्ट मल्टीप्लाई बाई नम। क्लियर, ये बात क्लियर है, point is clear to these are the important questions that ask in the exams, so please confirm, बोलिए। question is clear or not? Yes, sir. क्या मुझे लगता है कि सब ऐसे ही। सुदीप कुमार, Yes, sir. सुदीप क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. उमांगी, अविरल, प्रियांशी, गौरिका, एक बार और समझाते थे, दिव्यांजलि, Yes, sir. देखिए फिर से समझ, हमने फैक्ट की वैल्यू 1 ली हुई है, यहाँ से नम से वैल्यू, अगर हमने वैल्यू दे दी 1 तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो फैक्टोरियल 1 प्रिंट करके लॉग प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। हमने 0 दिया तो भी क्या करेगा, ये फैक्टोरियल 1 करके बाहर आ जाएगा। अगर हमने दिया 2 तो 2 देगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, पहले तो कंडीशन जब नम की वैल्यू चेक होगी, जब नम की वैल्यू चेक होगी हमारी, तो क्या होगा, ये एल्स पार्ट पर आ जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगी, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर जब 2 पर आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस करेक्ट है, चलेगा, लूप चलेगा हमारा, वाइल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या करेगा, ये फैक्ट की वैल्यू, पहली वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये फैक्ट की वैल्यू यहाँ से 1 रखी हुई है, तो यहाँ पर आएगा 1, और नम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने दे दी 2, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, ठीक है, तो वैल्यू चली जाएगी 2, ठीक। अब क्या करेगा, नीचे इज इक्वल टू नम माइनस 1, यानी नम की वैल्यू 2 थी, 2 में से 1 हुआ, तो 1 हो गई वैल्यू उसकी। अब 1 क्या हुआ, यहाँ पर आया 1 इज नॉट लेस देन 1, तो क्या करेगा 2 इंटू 1 करके ये लूप हमारा बाहर आ जाएगा, और वैल्यू हमें प्रिंट कर देगा 2 इंटू 1। तो इसको हम रन करते हैं, देखिए इसको हमने रन किया, इसको हमने दे दिया फैक्टोरियल _1, सेव कर दिया इसको, एंटर एनी नंबर, तो हमने नंबर इनपुट कराया 5, या हमने दिया 7, ठीक, एंटर किया, तो हमने प्रिंट नहीं किया है शायद इसकी वैल्यू को, वेट अ मिनट, हाँ इसका वैल्यू हमने जरूर प्रिंट नहीं किया है, फैक्टोरियल का वैल्यू हमें लास्ट में प्रिंट कर देना चाहिए, राइट, हाँ प्रिंट करना है फैक्टोरियल ऑफ द num is equal to comma, राइट। अब देखिए
अब ये हमको लिख के देगा कि फैक्टोरियल जो नंबर पर हमको आया है वो, ठीक है। हमने एंटर द नंबर, हमने 7 दिया, एंटर किया फैक्टोरियल ऑफ द, अच्छा 1 आ रहा है, 1 मिनट। तो हमने नम का वैल्यू यहाँ से क्या किया, फैक्टोरियल ऑफ द नम की वैल्यू 7 ले रहा है, तो इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं। फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू फैक्ट, ठीक। अगेन सी इट इज 6, द फैक्टोरियल नंबर इज 720। क्लियर? सही ना कि नहीं आया? 5 तक का 120 होता है और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। 720 क्लियर है? अरे बोलो भैया, पॉइंट इज क्लियर? और प्रोग्राम क्लियर हुआ कि नहीं? सब मुंह बंद किए बैठे हैं। यस सर। इतनी आवाज धीरे क्यों आ रही है? इतनी आवाज धीरे क्यों आ रही है? समझ में भी नहीं आया है क्या? सुदीप कुमार, यस सर। क्लियर? यस सर। बताओ मुझे, प्रोग्राम समझाओ। तो पहले फैक्ट 1, फिर सर उसका सर जो नंबर होगा वो डालेंगे। अगर 1 से छोटा है तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, लेकिन अगर वो 1 से बड़ा है तो फैक्टोरियल फैक्ट के साथ मल्टीप्लाई करके -1 होगा, फिर तो जो होगा तो फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू के साथ वो प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, उमांगी समझाएंगी मुझे, बताओ जरा। उमांगी निगम, यस सर। अनुश्री, हाँ उमांगी बताएंगी। पहले बताइए प्रोग्राम क्या करेगा, किस तरह से वर्किंग कर रहा है, आप मुझे इसकी पूरी एक्सप्लेन करिए, हाउ प्रोग्राम वर्क्स। क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन। सपोज हम 2 ले लेते हैं, तो जो क्या? 2 होगा वो, सर मैं एग्जांपल से समझा दूं समझा दो। कि सर अगर हम वो जो इंटर एनी नंबर है उसमें अगर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो जो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, और अगर हम उसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो हाँ फैक्टोरियल निकालेंगे तो अगर 1, हमने अगर 2 दिया तो पहली जो इफ कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। इफ कंडीशन जो लगी हुई है, लूप जो है वो वहां से जंप करके कहाँ आ जाएगा, एल्स पार्ट पर आ जाएगा। ये हमने पढ़ाया हुआ है कि इफ कंडीशन जब फॉल्स होती है तो एल्स पर जाता है वो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। माई वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं, या तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है? सुदीप, क्लियर है। ऐसा क्लियर है। Mangi, improve your network. If you are sitting in the room, you please go on the top. You will get good networks.
देखो फिर से समझ लो, हमने वैल्यू दिया अगर 1, तो पहली कंडीशन जो इफ लगा रखी है 1, तो ये क्या करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 लगी है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और हमें प्रिंट फैक्टोरियल लिख कर आएगा 1। और अगर हमने 2 दे दिया या 3 दिया या 4 दिया, तो ये क्या करेगा, इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और ये सीधा आकर लूप कहाँ एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट पर, क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स पार्ट पर जाएगा। एल्स पर जाएगा, वाइल में वैल्यू चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन 1, अगर ये ट्रू है तो फिर ये फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू नम करेगा और नम की वैल्यू एक कम करेगा। अगर ये ट्रू है तो ट्रू है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू है, तो ये क्या करेगा, फैक्ट की वैल्यू पहले हमने 1 ले रखी की वैल्यू 1, तो फैक्ट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो है वो फैक्ट की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, 1 होगी। और नम की वैल्यू कितनी हमने दी हुई है, कितनी दी है, 2 या 3, तो अगर 3 दी हुई है तो 3 इंटू क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1 3 हो जाएगी। ठीक, अब नम की वैल्यू में से एक कम कर देगा, तो 3 दी थी अब 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पर आएगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू है, तो अब फैक्ट की वैल्यू पहले कितनी थी, 3, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई फैक्ट में, अब आ गई फैक्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, अब नम की वैल्यू कितनी हो गई है, कम हो गई, तो नम की वैल्यू हो गई 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, तो फैक्ट में वैल्यू कितनी आ गई, अब 6 आ गई, और कम करें, नम -1 है, 2 में कम किया, अब 1 इज लेस देन 1, तो क्या करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये फिर एग्जीक्यूट, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और 3 इंटू 2 करके ये वैल्यू जो है वो बाहर आ जाएगी, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, इसीलिए ये 3 का जो फैक्टोरियल है वो 6 दे के हमको वापस चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, ये क्लियर है? हाँ, सर आपने नोट्स नहीं भेजे? अरे तो मैं अभी भेज दूंगा, ठीक है। एंड आई थिंक तुम्हारा 25th to 2 योर हॉलीडे इज देयर, आई थिंक नो क्लास विल बी देयर, ठीक है, केवल 10th और 12th का क्लास, 5th से लेकर 2 तक आपकी शायद हॉलीडेज है, ऐसा नोटिस दिया गया। केवल 10th और 12th का क्लासेस डेली 2 पीरियड चलेगा,
नोट्स मैं भेज दूंगा आज आपको, अभी अगर हो सकता है तो मैं अभी डाउनलोड करके भेज देता हूँ, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय एवरीवन।